مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت سے مالا مال کرے۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 3 اور اس کی 7 آیت کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے تاکہ خداوند ہمیں برکت دے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں زبور 3 اور اس کی 7 آیت، خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے آیت کے بارے میں غور کرنے کے لیے سب سے پہلے لفظ کس کے بارے میں سیکھا جائے گا؟ اٹھ، بچا، مار اور شریروں۔ جو اٹھ کا لفظ ہے، خدا کے کلام مقدس میں اٹھ کا لفظ 1394 بار استعمال کیا گیا ہے۔ اٹھ، اور اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ کیا ہے؟ کھڑا ہونا، اٹھنا، رخصت ہونا، چلنا، اٹھ بیٹھنا۔ تو آج خداوند کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ اے خداوند ہم پریشانیوں میں ہیں، اے خداوند ہم مشکلاتوں میں ہیں، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، اٹھ۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے زبور 20 اور اس کی 8 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں زبور 20 اور اس کی 8 آیت: وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور 36 اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے: بدکردار وہاں گرے پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکے۔ زبور 44 اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے: ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ تھے۔ ہمارے زندہ خداوند نے آپ کا فدیہ دیا، وہ اٹھا اور اٹھ کر آپ کا سارا بوجھ، آپ کی بدیوں کا بوجھ، آپ کے گناہوں کا بوجھ، آپ کی پریشانیوں کا بوجھ، آپ کی تکلیفوں کا بوجھ، آپ کے قرضوں کا بوجھ، آپ کی ایک ایک مشکلات کا جو بوجھ تھا، وہ ہمارے خداوند نے اپنی کمر پر لے کے پیچھے پھینک دیا، اٹھا لیا۔ آج اگر آپ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ تندرستی کی حالت میں کیسے ہیں، آپ آزادی کی حالت میں کیسے ہیں، یہاں تک میں آپ کو بتا دوں ابلیس آپ سے ڈرتا ہے۔ ابلیس صرف لڑکرے مار کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھبرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسے دباؤں اس بیٹے کو، میں اس طرح پریشان کروں اس بچی کو۔ اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے لیے اٹھ چکا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا۔ کوئی اور نہیں آپ کی حفاظت کے لیے اٹھے گا۔ کون اٹھے گا؟ ہمارا خدا۔ اور اسی ہماری مرکزی آیت کو میں آگے پڑھتا ہوں: مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے۔ اور بچا کا جو لفظ ہے وہ کلام مقدس میں 326 بار استعمال ہوا ہے۔ بچا کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 326 بار۔ اور اس کے لغت مطلب، لفظی مطلب کیا ہے؟ محفوظ، مدد کرنا، حفاظت کرنے والا، تکلیف سے چھڑانے والا۔ محفوظ،
मदद, हिफाजत करने वाला, तकलीफ से क्या करने वाला, छुड़ाने वाला। आपको तकलीफ से कौन छुड़ाने वाला है? आपकी बीमारियों से आपको रिहाई देने वाला कौन है? आपकी परेशानियों से आपको निकालने वाला कौन है? वो आपका जिंदा खुदा, वो यहोवा पाक खुदा, वो मस्सा करने वाला, वो जोर से मालामाल करने वाला, वो ताकत से मालामाल करने वाला, वो जलाल से मालामाल करने वाला खुदा आपको परेशानियों से निकालता है। वो खुदा आपको मुश्किलातों से निकालता है। आप अपनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, आप अपनी टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं, आप अपनी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, मगर आपका खुदा जिंदा खुदा है। आप जिस खुदा के सामने झुकते हैं, आप जिस खुदा के सामने गिरते हैं, आप जिस खुदा के सामने झुकते हैं, ऐ खुदावन मैं आज आपसे मिन्नत करता हूँ, ऐ खुदावन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। वो खुदा आपको रिहाई देने वाला है, वो खुदा आपको रिहाई देता है। आज वो खुदा आपके लिए जंग लड़ता है, आज वो खुदा आपकी हिफाजत करता है। आज आप परेशानियों में होते हैं, आप मुश्किलात में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, आप ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लोग कहते हैं मुझे फालज छोड़ के नहीं जाता, लोग कहते हैं मुझे हार्ट का ऑपरेशन नहीं छोड़ के जाता, लोग कहते हैं मेरे दिल के अंदर सुराख हो चुका है, लोग कहते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर फोड़े बन चुके हैं, लोग कहते हैं मेरे जिस्म के अंदर रसोलियां बन चुकी हैं, मेरे गुर्दे के अंदर पत्थरियां हैं, मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है वो खत्म नहीं होती। लेकिन आज मैं आपसे हकीकत कह रहा हूं, इस आयत को जब आप गौर से सुनेंगे, इस आयत को जब आप समझेंगे, उठ ऐ खुदावन मेरे खुदा मुझे बचा। आपका खुदा उठ चुका है आपको बचाने के लिए, आपका खुदा उठ चुका है आपको संभालने के लिए, आपका खुदा आपकी हिफाजत करने के लिए उठा है, आपका खुदा आपको बीमारियों से निकालने के लिए उठा है, आपको कर्जे से निकालने के लिए उठा है। लोग कहते हैं मेरे पास कारोबार नहीं, लोग कहते हैं मुझे काम नहीं मिल रहा, लेकिन आपका खुदा आपकी हिफाजत के लिए उठ चुका है। आपका खुदा आपको परेशानियों से निकालने के लिए उठा हुआ है। आपका खुदा आपका सहारा है, आपका खुदा आपका भरोसा है, आपका खुदा आपका यकीन है। मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, आज आपसे एक बात कहता हूँ, खुदा का बंदा दाऊद खुदा से पूछता है कि खुदावन मैं जंग करने के लिए सामने से जाऊं, मैं जंग करने के लिए साइड से जाऊं, मैं जंग करने के लिए इस साइड से दाएं से जाऊं या बाएं से जाऊं, तो खुदा उससे बात करता है। क्यों? उसका यकीन, उसका भरोसा खुदावन पर होता है कि वो जानता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो मैं हर बीमारी, हर परेशानी से निकल सकता हूँ। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में दूसरा सैमुएल उसकी 22 आयत और 22 बाप और उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, मुसीबत ज़दा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं ताकि तू उन्हें नीचा करे। ऐ खुदावन मैं जानता हूं कि आप मुसीबत ज़दा लोगों को बचाने वाले हैं, और जो जितने भी मगरूर हैं, जितने भी अकड़बाज हैं, ऐ खुदावन वो आपके नाम से, आपके जलाल, आपकी रूह से झुके हुए हैं, वो आपके नाम से झुक चुके हैं। वो नहीं जानते कि खुदा का कलाम क्या चीज है, वो नहीं जानते खुदा का कलाम किस तरह मार देता है, वो नहीं जानते कि खुदा का कलाम हमें हर परेशानियों से निकालने वाला है। ऐ खुदावन मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। यसाया 33 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावन हमारा हाकम है, खुदावन हमारी शरीयत देने वाला है, खुदावन हमारा बादशाह है और वही हमको बचाएगा। आप यहाँ पर देखें कि खुदावन ही हमारा बादशाह है, यहाँ पर देखें कि खुदावन ही हमें बचाने वाला है, यहाँ पर देखें कि खुदावन ही हमें शरीयत देने वाला है, यहाँ पर देखें कि खुदावन ही हमारा हाकम है। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकम है, खुदावंद हमारी शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। आमीन। आप खुदा कलाम में लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, उठते बैठते सोते जागते इसको पढ़, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। कल नहीं तो मैं परसों की बात है,
एक दो दिन पहले की बात है, एक फैमिली मेरे पास आई, कहने लगी कि भाई मैंने कर्जे पर कर्जा ले रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज पे हाथ रखूं, कि क्या करूं ना क्या करूं। लेकिन खुदा का कलाम आपको आज एक बात कहता है, आपका रुपया पैसा बाई से बरकत होगा। खुदा के कलाम की बातों पर अगर अमल करे, खुदा का कलाम कहता है कि तू मेरे हुक्मों पर क्या कर, अमल कर, मैं तेरे रुपए पैसे पर क्या करूंगा, बरकत दूंगा। और बरकत के बाद फिर आगे आगे भी एक लफ्ज होता है, वो क्या कहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा क्या है, मैं तेरे रुपए पैसे पर बरकत दूंगा, तू कर्ज लेगा नहीं पर कर्ज देगा। आप कर्ज देने वाले बने, आप खुदा के कलाम को अपने साथ रखने वाले बने, आप खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, खुदा का कलाम आपके साथ जुड़ गया है। अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आज खुदा के कलाम को अपने साथ रखें और खुदावंद आपको बचाएगा। मैं एक बार फिर अपनी मर्जी आयत को पढ़ता हूं, उठ ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों के जबड़े पर क्या किया है, मारा है। हमारा तीसरा लफ्ज क्या है, मारा। मारा का जो लफ्ज है, वो कलाम मुकद्दस में कितनी बार लिखा गया है, 262 262। इसके लफ्जी मतलब और लुगत मतलब क्या है, उजड़ा हुआ, बर्बाद किया हुआ, तबाह किया हुआ। खुदाउन के जिंदा और पाक कलाम में जब इस लफ्ज के बारे में जानने के लिए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो यसाया उसका 57 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छुपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकली ठीक भटक गया था। मैं इसी आयत को एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूं कि मैंने उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छुपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उसके राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। आमीन। आज आपको मार तब पड़ती है, आज आपको मार तब पड़ेगी जब आप खुदा के कलाम की बातों से भटक जाते हैं, जब आप खुदा के कलाम से अलग हो जाते हैं, जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, जब आप खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ते नहीं। आपके दिल में लालच आ जाती है, आप गुनाह की तरफ भाग जाते हैं, आपके अंदर धोखा आ जाता है, आप फिर गुनाह की तरफ जाते हैं, आपके अंदर परेशानियां आ जाती हैं, आप फिर गुनाह की तरफ जाते हैं। मैं कल गालबन एक खादम का एक मैसेज सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपके घर में गुनाह दाखिल कब होता है, आपके घर में गुनाह किस वक्त जन्म लेता है। आपके घराने में गुनाह तब जन्म लेता है जब आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जब पूरा घराना खुदा के कलाम को नहीं पढ़ता, जब पूरा घर खुदा के कलाम के साथ नहीं जुड़ा होता। खुदा के कलाम को इस तरह नहीं पढ़ते, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके फैमिली मेंबर खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। बहुत से खादमीन हैं और उनके घर अच्छे नहीं होते, बहुत से खादमीनों के घर तबाही की तरफ जा रहे होते हैं, और बहुत से खादमीनों के घर परेशानियों में जा रहे होते हैं, मुश्किलातों में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, वो लोग खुदा के कलाम की बातों के साथ नहीं चलते। आमीन। आगे मरसी आयत को मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूं, उठ ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों
को जबड़े पर मारा है, तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। यहां पर हमने सीखा है उठ, बचा, मारा और शरीरों का जो लफ्ज है वो खुदा के कलाम मुकद्दस में 116 बार इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके लुगत मतलब या लफ्जी मतलब देखते हैं, वो क्या है? शरारत पसंद, ऐबदार, खराब करने वाला, आपको नुकसान पहुंचाने वाला। मिसाल की किताब 4 बाब 14 आयत में लिखा हुआ है, शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। मिसाल की किताब 4 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, शरीरों की राह तरीके की मानद है, वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। आमीन। आप इस आयत को अगर आप गौर से देखें, आप इस आयत के बारे में जानें, तो आपको क्या समझ आ रही है कि शरीरों के रास्ते कैसे हैं? अंधेरे की तरफ। शरीरों के रास्ते कैसे हैं? तरीकी की तरफ। शरीर का रास्ता कैसा है? बदनामी की तरफ। शरीर का रास्ता कैसा है? घर से निकालने वाला। शरीर का रास्ता कैसा है? अपने खानदान से दरबदर करने वाला, अपने बहन भाइयों से दरबदर करने वाला, आपको अपने चर्च से दरबदर करने वाला, आपको अपने खादम से दूर करने वाला, आपको अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से। मैं यहां पर एक बात कहता हूं कि शरीर ऐसे होते हैं जो आपका नुकसान करते हैं। शरारत पसंद लोग होते हैं। शरीर ऐसे होते हैं जो आपको आपको जला देते हैं। शरीर ऐसे होते हैं जो आपका नुकसान करके हंसते हैं। शरीर ऐसे होते हैं जो आपका नुकसान करके कहके लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। एक मियाँ बीवी का घर बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है। एक मियाँ बीवी अपने घर में बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं, लेकिन शरारत पसंद लोग, शरीर लोग जो शरारत करने वाले होते हैं, वो उस घर की बर्बादी के लिए ऐसे ऐसे टोटके ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक तक बात चली जाती है। और खुदा का कलाम तलाक के बारे में बहुत गुस्सा करता है। खुदा का कलाम तलाक के बारे में मन्ना करता है कि ये लफ्ज खुदा को पसंद ही नहीं। खुदा के कलाम में अगर आप गौर करें कि ये लफ्ज खुदा को क्यों नहीं पसंद, क्योंकि आप खुदा की क्या हो? दुल्हन हो। दुल्हा जब आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अगर दुल्हन और दुल्हे के दरमियान में प्यार मोहब्बत नहीं है, तो फिर ये तलाक का लफ्ज आता है, तो फिर आपकी खुदा के साथ क्या होती है? जुदाई होती है। आप खुदा से दूर हो जाते हैं। आप खुदा से दूर अलैदगी पसंद में चले जाते हैं। आप देखें कि क्या कहीं मैं ऐसा तो नहीं, कहीं मैं तलाकशुदा तो नहीं कि मैं खुदा से दूर हो चुका हूं। अपने खुदावन से जुड़े, खुदावन से मिन्नत करें, बरकत पाएं और शफकत लें और जलाल मसा ताकत वाला हाथ लें। मैं आज उम्मीद करता हूं कि आज इस कलाम के सबब से, आज इस कलाम के वसीला से आप बाइस बरकत हैं। आज का कलाम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके खानदान के लिए बाइस बरकत है। जबूर 3 और उसकी 7 आयत। उठ है खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे दुश्मनों को जबड़े पर मारा है, तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, और खुदावन का मस्सा हमेशा हमेशा आप सबके साथ हो, और खुदावन आपको बरकतों से माला माल करे, और खुदा का जलाल, बरकत, शफकत वाला हाथ हमेशा आपके साथ हो। आमीन। खुदावन